Alright, so we have seen the first set which was of CAT 2017. Let's have a look at another set which is again from the same paper, CAT 2017. Okay, so how are we going to solve it? First I'll show you the data and I'll give you some time for you to understand what has been given. Try to find out what has been given, what is missing, and how will you reach to what is missing, to find what is missing. Okay, so for that exercise should take somewhere about 5 to 7 minutes. If you are slow, if you think that you need more time, I am fine with that. Pause the video, take more time, create your own understanding of the set, and then we'll take you to the questions one by one. And I'll give you some time. I'll tell you the level of difficulty, and in the given time frame, you're supposed to solve it. Okay. So this is the data, right? Looks like it does not look simple. It does not look simple. It looks like it has a table, it has a bar graph as well. Okay, so I am going to give you about 5 minutes to understand what is given, number one, what is missing, number two, and how would you be able to reach to find what is missing. So take 5 minutes, pause the video, and resume when you have understood the set a little bit better than having a first look. Okay, so I hope by now you have understood the table, understood the data set, right? So let's just have a read so that you can once again try to understand it. Simple happiness index SHI of a country is computed on the basis of 3 parameters: social support S, freedom to life choices F, and corruption perception C. Each of these 3 parameters is measured on a scale of 0 to 8, integers only, right? A country is then categorized based on the total score obtained by summing the scores of all the 3 parameters as shown in the following table. So you have been given a table, right? You can see this table. So here, if the total score of the country is 0 to 4, it will be very unhappy. The category, the simple happiness index, will be very unhappy. Then you have 5 to 8 showcasing unhappy, 9 to 13 neutral, 14 to 19 happy, and 20 to 24 very happy. So this is the categorization. Now following the diagram depicts the frequency distribution of the scores S, F, and C of 10 countries. A, B, so A, B, C, D, E, V, W, X, Y, Z. These are the names. So I'm not even going to bother about AMDA, Banga, Kala, and so on. I'm just to call them A, B, C, D, E, V, W, X, Y, Z. Okay, so this bar graph is a frequency distribution. So I hope you're able to see. So you need to understand what is given and how to interpret it, right? So S is blue, F is saffron, and C is green, right? So you can see that one score of saffron, and there are 2 such countries. This is how you are supposed to interpret this table, that there are 2 countries having the score of 1 in saffron. That means what? F, freedom to life choices, and so on. This is how you are supposed to read. Okay, I won't help you further because you are still yet to solve the question on your own, right? But yes, we will read together. Further, the following are known. A and C jointly have the lowest total score 7, with identical scores in all the 3 parameters. Okay, so that's a good information. Then Z has a total score of 17. Z has a total score of 17. And third, all the 3 countries which categorized as happy have the highest score in exactly 1 parameter. Okay, so all the 3 countries who are categorized as happy, that means their score is in the range of 14 to 19. They have 1 highest score each. This is what has been given. Okay, I know that it is a little bit difficult to comprehend everything at the same time. So please make sure that you note down important things in your notebook and you use it while solving the questions. Okay, so first I'll take you to all the questions one by one. I'll give you the time frame, I'll give you the level of difficulty, and then we will solve it together. Okay. Okay, so this is for my rough work. Yeah. Question 1, what is A's score in F? What is A's score in F? Now, I'm going to categorize this question as moderate level, and I think you should take about 2 to 3 minutes because you're solving it for the first time, right? 2 to 3 minutes maximum
and pause the video, take 2 to 3 minutes, come back to me when you have tried it, hopefully when you have got the answer. Okay, so I believe by now you must have been able to at least try it and mark your answer. So this is a theta question. What is theta? Type in the answer. Theta question in which you will have a text box. So you will have a text box and here you will have few buttons. Right, like this 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, then some this, something. You'll have some inputs. These are input. You're supposed to click on this and you're supposed to enter your answer. This is theta, right? Theta questions. How many theta questions are there? So we can say 8 to 10 per section. 8 to 10. We know that there are 3 sections in CAT. So in each section, you'll have 8 to 10 per section. Number 2, theta question have no negative marking. Right? They have no negative marking. That means if you enter a wrong answer, you are not going to, it's not going to cost you anything. Okay? But yes, it might cost you time, but it's not going to cost you marks. Right? And the third, till now, we have seen that theta have only integer values as answers. Integer values. Okay, till now we have seen that theta has only integer values as answers. So that was for theta. Okay, question 1, what is A score in F? I am sure you have tried it till now. We'll go to the next. What is Z score in S? S is social support. What is Z ka score in S? Again a moderate level question, not difficult, moderate. If you've understood the set, if you've done some rough work, you might be able to solve it. Take 2 minutes. Pause the video, try it on your own, resume when you think that you have got the answer. Okay, I'm going to exit the screen now so that you can take a pause. Alright, so I hope by now you have tried this question and you might have reached to its answer. Let's go to the next question. Question 3. B and D, Benga and Delma, 2 countries categorized as happy, are tied with the same total score. What is the maximum score they can have? So this is a moderate to difficult level question. Okay, I'm going to give you 3 minutes for this. Think, try to solve it on your own. If you are able to solve it, nothing like it, great. If not, I'm fine with it. At least try a bit, that's it. Pause the video, take 3 minutes, solve it on your own. Okay, I hope you have tried it. Let's go to the next and last question. Sorry. Question 4. If Benga scores 16 and Delma scores 15, then what is the maximum number of countries with a score of 13? Interesting questions. I should categorize it in the moderate to difficult level. Okay, again take 3 minutes, pause the video, resume when you have got the answer. Take 3 minutes, pause the video, resume when you have got the answer. Okay, so I hope by now you have tried all the 4 questions, right? Now this was a difficult level set. The overall difficulty level was difficult, right? That means ideally in the exam, probably most of you should not have chosen it. You should have looked for an easy set. But why are we learning? So if this is the set that you might quit, why are we learning how to solve it? Because first you need to understand how to identify the difficult set, right? And number 1, if you end up choosing a difficult set, you still need to understand how to solve it because you've invested some time in it, you've developed the understanding. So what if it is difficult? Please understand, level of difficulty is in many cases subjective. For example, if something is difficult for me, might not be difficult for you, and if something is difficult for you, might not be difficult for me, right? So that's why we need to understand how to solve every kind of question. There is no absolute difficult, there is no absolute easy. So let's go back to the data first. Yeah.
So this is the data, right? We have understood this, right? There is nothing difficult about it. We have to understand this bar graph. Okay, so as I said, you have to look at the bar graph and you have to see how many countries have got 1 ka score in F, right? So what do we do here? How do we solve? So we can we categorize all the S scores, right? S is blue. So see, there is no country who has got 1 ka S ka score. There is no country who has got 2 ka S ka score. And there are 3 countries with 3 ka score. So, you know, if I have to just write it somewhere, so S mein 3, 3, 3, that means 3 countries with a score of 3, then 3 countries with a score of 4, okay? So 4, 4, 4, okay? Then 2 countries with a score of 5, 5, 5, then 1 country with a score of 6 and 1 country with a score of 7, 6 and 7. Okay, these are all the S scores. ये 10 countries के S के scores हैं. So can we do something? Can we just categorize the score properly in the next slide? Yes. So I've got 3 threes, then I've got 3 fours. मैंने 4 कर दिए क्या? Yeah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 9, 10. Yeah, 3 threes, 3 fours, 5, 5, 6, 7. So I'll just use this data. So here is S, here is F, here is C, okay? And just to help you understand properly, I'm going to use a table format. So yeah, so now I have 3 threes, 3, 3, 3, then 3 fours, 4, 4, 2, 5, 6, and 7. These are the S scores, right? These are the S scores. Now, what about F? F is the saffron one. So F, I've got 1 ka score 2, so 1, 1. 1, 1, then 2 वाला 1 है, so 2, 3 वाले 2 है, so 2, 3, 3, 4 वाला 1 है, so 2, 3, 3, 4. I'll just mention it here, sorry. 2, 3, 3, 4, okay. Then saffron I have 5 वाले 3 है, देखो, so 5, 5, 5 and 8, 7 वाला, okay. 5, 5, 5, 1, 7 वाला है, right? These are the 10 scores. कौन से कंट्री का है? We don't know. कौन से कंट्री का है? We don't know, right? Okay. What about C? Corruption वाला, green. So I got 1, 1, 3 twos. So 1, 2, 2, 2, and 3, 3. 1, 2, 2, 2, 3, 3, okay. Then green, so I've got 1, 2, 2, oh, 3 वाले 4 थे, okay. 3 वाले 4 हैं, so 3 and 3, okay. Green वाला देखना है, 4 वाला 1, 6 वाला 1, 4 वाला 1, 6 वाला 1. Now this is the table जो हमने बार ग्राफ में से निकाला. So bar graph is now converted into the table. Okay, now ये टेबल हम कंप्लीटली पूरे सेट में यूज करने वाले हैं. दैट इज व्हाई आई हैव डन इट प्रॉपर्ली. ओके, ठीक है. सो अभी इसको यहां रखते हैं. व्हाट नेक्स्ट? नाउ फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन वी विल यूज दिस डेटा. A and C jointly have the lowest total score 7 with identical scores in all the 3 parameters. A and C का स्कोर 7 है जो आइडेंटिकल है और तीनों पैरामीटर का स्कोर भी आइडेंटिकल है, राइट?
सो अभी तक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, हमें पॉसिबिलिटीज बनानी पड़ेंगी, राइट? सो लेट्स ट्राई टू डू दैट। चलिए यहीं से स्टार्ट करते हैं। ओके, हाउ कैन यू क्रिएट 7 का स्कोर? आपको दो कंट्री के स्कोर बनाने हैं, दोनों का एस में भी सेम होना चाहिए, एफ में भी सेम होना चाहिए, सी में भी सेम होना चाहिए। ओके, सो लेट्स ट्राई टू डू। कैसे कर सकते हैं? 7 आप कैसे बना सकते हो? फॉर एग्जाम्पल अगर उसका एस का स्कोर 3 है, मैं 2 3 ले सकता हूं। ओके, सो मैं यहां पर 2 3 ले लू। सो लेट्स से ये ए है और ये सी है। पहला स्कोर हमेशा मैं एस का लिखूंगा, फिर एफ का लिखूंगा, फिर सी का लिखूंगा। ओके, सो यहां से मैं 2 3 ले सकता हूं। सो दोनों में 3 3 दे दिया, यहां पर दोनों में 1 1 दे दीजिए, दोनों में 1 1 दे दिया। कितना बचा? 4 हुआ, ये बाजू इधर 3 है। क्या इसके पास 2 3 है? हाँ है। सो 3 1 3, ये एक स्कोर पॉसिबल है। यस, दिस इज वन सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन, फिर से ए, फिर से सी। चलिए अगर मैं यहां पर 3 नहीं लेना है, अगर मैं यहां पर 4 4 लेता हूं। ओके, सो यहां पर अगर मैंने 4 4 लिया, अगर मैं यहां पर 1 1 लेता हूं, सो वापस 1 1 पॉसिबल है। 4 4 1 1, 4 और प्लस 1 5 होता है, बचा इधर 2। क्या इसमें 2 2 है? हाँ है। सो 4 1 2 4 1 2, ये भी पॉसिबिलिटी सही है। सो ये भी केस सही है, राइट? आई होप आप समझ पा रहे हो कि मैं कैसे केसेस बना रहा हूं, राइट? थर्ड केस, फिर से ए एंड सी। चलिए अगर मैं यहां से लेता हूं 5 5, अगर मैं यहां से लेता हूं 5 5, कैन आई टेक 1 1 फ्रॉम हियर? सो अगर मैंने यहां पर 5 1 1 ले लिया, 5 प्लस 1 6 होता है, बचा इधर 1 आना चाहिए। क्या इसके पास 2 1 है? सो दैट मैं यहां और यहां दोनों जगह 1 लिख पाऊं। ये 1 1 क्या आई हैव, क्या सी में 2 1 है? नहीं है। इसका मतलब ये केस नहीं हो सकता, ये केस नहीं हो सकता। ओके, क्या मेरे पास एस को देने के लिए कुछ भी और डबल बचा है? डुप्लीकेट? नो, एक ही 6 है, एक ही 7 है। इसका मतलब एस का स्कोर ना 6 हो सकता है ना 7 हो सकता है। इसका मतलब यही दोनों पॉसिबिलिटी है, एक ये केस सही है, एक ये केस सही है। These are the only 2 cases. So now let's come to the question. What was the question? What is A score in F? चलो देखते हैं। A का स्कोर F में क्या है? ये S है, ये F है और ये C है। आप देखिए दोनों केसेस में A का स्कोर F में 1 ही है। दोनों केसेस में A का स्कोर 1 ही है। इसका मतलब मेरा आंसर क्या आएगा? 1। फर्स्ट क्वेश्चन। आंसर इज 1। F का स्कोर दोनों में 1 है। सो आई होप इट्स क्लियर नाउ कि यहां पर हमें पॉसिबिलिटीज का गेम खेलना है, करेक्ट? डिफरेंट केसेस बनाने हैं। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज Z स्कोर इन S? Z का स्कोर S में क्या है? सो उसके लिए हमें फर्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा, जहां पर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, ये रही। सो प्लीज रीड दिस डेटा। सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है? Z has a total score of 17. इसका मतलब Z इस कैटेगरी में है, हैप्पी। Z is happy, है ना? So let's go to our solution. Okay, आपको 17 का स्कोर बनाना है। 17, इस टेबल को देखिए और आप 17 का स्कोर बनाने की कोशिश कीजिए। ट्राई टू क्रिएट अ स्कोर ऑफ 17। ऑब्वियसली बात है कि 17 का स्कोर टोटल बहुत बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब तीनों में नंबर बड़े होने चाहिए, तभी जाकर आपका स्कोर 17 बनेगा। ठीक है? ओके, सो 17 का स्कोर कैसे कैसे बना सकते हैं हम लोग? चलो अगर मैं सबसे बड़े 3 ले लूं तो 7 + 7 + 6, ये स्कोर कितना हो जाता है? 20। बट दैट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि 20 में मुझे 17 बनाना है। ठीक है? प्लस मैं 2 7 को एक साथ नहीं रख सकता, बिकॉज उन्होंने बोला हुआ है कि हाईएस्ट स्कोर, हर एक कैटेगरी का हाईएस्ट स्कोर अलग कंट्री के पास है। मतलब इसका हाईएस्ट स्कोर अगर 7 किसी को दे दिया तो ये 7 उसी कंट्री को नहीं दे सकते, क्योंकि उसमें उसी कंट्री का 2 हाईएस्ट हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो चलो लेट्स ट्राई टू क्रिएट 17। यहां से बस आप केसेस को आइडेंटिफाई कीजिए, कैसे कैसे 17 बना सकते हैं। ओके, या
सो लेट्स थिंक 7 + 5 12, 12 अगर इधर लिया मैंने तो मेरे पास 5 नहीं है 17 बनाने के लिए, तो 7 + 5 भी नहीं बना सकता मैं, ठीक है। 7 + 4 11, 7 + 4 11 plus 6, 7 4 6, so let me write here 7 4 6, बट उसमें भी प्रॉब्लम है बिकॉज हम इसका हाईएस्ट किसी दोनों कंट्री को सेम कंट्री को दे रहे हैं z को, ये भी पॉसिबल नहीं है। 7 4 6 इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। 7 3 10 एंड 7, तो इसका मतलब है 7 इसको मैं यहां पर सोशल सपोर्ट में z को नहीं दे सकता हूं, करेक्ट, ठीक है। 6 के साथ 6 को पकड़ते हैं, चलो 6 + 7 13, 6 + 7 13, 13 + 4 6 7 4 17, 6 7 4, so let me write, ये पॉसिबल है बिकॉज यहां पर मैंने सिर्फ एक ही हाईएस्ट दिया हुआ है 6 7 4, इसको मैं लिख लेता हूं नेक्स्ट जगह पर। सो z का स्कोर SFC 6 7 4, ये पहला केस मिला हमें, ओके। चलिए तो 6 7 4 करके देख लिया हमने। 6 5, 6 + 5 11, 11 + 6 6 5 6, ये भी तो पॉसिबल है बिकॉज हमने एक ही हाईएस्ट दिया है। 6 5 6 हमने एक ही हाईएस्ट दिया है, सो दैट इज पॉसिबल। 6 5 6, आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम विद दैट। 6 5 6, ओके, व्हाट एल्स? चलिए 6 5 6 भी कर लिया हमने। 6 के साथ 7 को रख सकते हैं, वो हमने ऑलरेडी कर लिया है। 6 से तो 5 को रख दिया। 6 and 4, 6 4 करोगे आप तो 6 4 10 हो जाएगा। 10 में आप 7 ऐड करोगे, 7 इसके पास सी में है नहीं, तो 6 4 नहीं जा सकते, ओके। 5 5 के साथ कुछ पॉसिबल है, चलिए 5 + 7 12, 12 एंड यहां पर 5 नहीं है, सो 5 के साथ कुछ पॉसिबल नहीं है। 4 7 11, 11 6, 4 7 6 भी पॉसिबल है बिकॉज दो हाईएस्ट आ जाएंगे। सो कैन आई सेफली से दैट दीज आर द ओनली टू केसेस, 6 7 4 and 6 5 6। सो नाउ लेट्स गो टू द क्वेश्चन। व्हाट इज ज़ूमा स्कोर इन S? पहला पॉसिबिलिटी क्या था? 6 7 4। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या था? 6 5 6। इसका मतलब है S में ज़ूमा का स्कोर 6 ही है दोनों केसेस में। इसका मतलब आंसर क्या आएगा? 6। ज़ूमा का स्कोर, Z का स्कोर सोशल सपोर्ट में 6 ही है दोनों केसेस में, सो दैट्स व्हाई अपना आंसर इज 6, राइट। सो आई होप द फर्स्ट टू क्वेश्चंस आर क्लियर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3, B and D, two countries categorized as happy, are tied with the same total score. What is the maximum score that they can have? B and D, two countries categorized as happy, are tied with the same total score. Okay. First of all, ये लोग happy हैं. We also know that Z is also happy with a score of 17. Z is also happy with a score of 17. हम ये जानते हैं। इसका मतलब Z के साथ B and D, ये तीन कंट्री हैप्पी वाले हमें जो दिए गए थे वो हमें मिल चुके हैं। कैसे? सो वापस आ जाते हैं सेट के ऊपर। यहां पर देखिए, हमें ये मालूम है all the three countries which categorized as happy have the highest score in exactly one parameter. मतलब एक हाईएस्ट तो सबको देना ही देना है, उसमें से उनका हैप्पी का स्कोर, हैप्पी मतलब कौन सा रेंज है? 14 to 19, जिसमें ऑलरेडी Z आ चुका है जिसका स्कोर 17 है, और Z के हमारे पास दो पॉसिबल सोल्यूशन भी थे, है ना। सो यहां से हमें इस चीज को पकड़ना है। चलो, दो कंट्री है B and D, उनका स्कोर होना चाहिए 14 से 19, और हर एक हाईएस्ट किसी एक के पास ही जाना चाहिए। सो लेट्स सी अगेन, यहां पर अपना जो टेबल है उसकी मदद से अपन ट्राई करते हैं। ओके, चलिए यही इसी पेज पे करते हैं। सो SFC, ये Z ले लीजिए, ये B ले लीजिए, ये D ले लीजिए, ठीक है। Z के हमारे पास टू केसेस हैं। इसका मतलब ये वाला टेबल दो बार बनाना पड़ेगा, सो आई एम फाइन विद दैट। ये मान लो पहला टेबल है और ये दूसरा टेबल, वापिस Z B D।
ये है केस 1 और ये है केस 2। एक केस में z का स्कोर मैंने लिया हुआ है 674, 674, ठीक है। ओके, व्हाट एल्स, हमें क्या और क्या दिया हुआ है? We know that all the three countries which categorize as happy have the highest score in exactly one parameter। इस पेज से हमें ये पता चलता है कि एक हाईएस्ट सबके पास है, ठीक है। यहां से हमें क्या मालूम चलता है? एक हाईएस्ट है 7, दूसरा है 7, तीसरा है 6। एस का हाईएस्ट 7 है, एफ का हाईएस्ट 7 है, सी का हाईएस्ट 6 है, ठीक है। और बाकी दोनों, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बाकी दोनों कंट्री के स्कोर सेम है। सो दिस इज द क्वेश्चन। Two countries, they are tied with one score, same total score. Okay. In fact, I will create the page, create the table here. Right. So फिर से SFC, यहां पर Z, B, D, ये होगा अपना पहला पॉसिबिलिटी 6, 7, 4, और दूसरा पॉसिबिलिटी भी यहीं पे कर देते हैं S, F, C, Z, B, D, और एक ही लाइन में करते हैं। या S, F, C, Z, B, D। एक उसका स्कोर था 674, दूसरा स्कोर क्या है उसका हाईएस्ट? 656, ठीक है। 656, ठीक है ना। बाकी दोनों का स्कोर सेम होना चाहिए, हमें ये बोला गया है। बाकी दोनों का स्कोर जो है वो सेम होना चाहिए और उनके पास कोई ना कोई हाईएस्ट फिगर है, ठीक है। ओके, तो पहले 674 वाला पॉसिबिलिटी चेक करते हैं एंड लेट्स ट्राई टू सी कि क्या हम उनका स्कोर 17 या 16 या 15 या 14 तक पहुंचा सकते हैं कि नहीं, ठीक है। सो लेट्स सी द डेटा। हमारा जो नंबर था, टेबल अपना, या कमिंग टू दिस टेबल, राइट। ये टेबल पूरे क्वेश्चन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको एक अच्छी जगह पर बनाना पड़ेगा सो दैट यू कैन कंटिन्यूअसली रिफर बैक टू इट, ठीक है। चलिए, हमने ऑलरेडी एक 674 दे दिया है, किसको? Z को 674, राइट। इसका मतलब है कि F का हाईएस्ट स्कोर अब जा चुका है, 674, F का हाईएस्ट स्कोर अभी जा चुका है। सो अब हम कौन सा एक हाईएस्ट स्कोर को यूज करना ही करना है। लेट्स से अगर मैं ये 7 यूज करता हूं, सो 7 + 5 एंड आई कैन नॉट यूज दिस 6, सो 7 + 5 + 4, अगर मैं ये बनाऊं तो व्हाट इज 7 + 5 + 4? 7 + 5 + 4 is 16। सो मैं यहां पर लिख रहा हूं 7, 5, 4 is 16। ओके, अभी मुझे दूसरा 16 बनाना है, 17 तो बना नहीं सकते, दूसरा 16 बनाना है, कैसे करेंगे? इन दैट केस अभी मैंने ये यूज किया 7, 5 and 4, ये 6 अभी तक बाकी है, ठीक है। सो लेट मी पिक अप दिस 6 + 6 12 + 4, 6 + 6 + 4, ये भी कितना? 16 होगा। 6 + 6 + 4, ये भी कितना होगा? 16 होगा। तो 16 का पॉसिबिलिटी है, 754 664, राइट। 16 कैन आई हैव 17? क्या मैं 17 बना सकता था? सो अगर मुझे 17 बनाना हो, सो मैं क्या करता? पहले मैंने जहां पर 754 लिया हुआ है, 7 + 5 + 4, सो आप देखिए ये 7 यूज हो चुका है। अगर मैं इस 7 को यूज कर सकता हूं तो 6 को यूज नहीं कर पाऊंगा। तो मेरा हाईएस्ट स्कोर जो एक कंट्री का पक्का बनेगा वो होगा 7 + 5 + 4, वो 16 ही बनेगा। 17 तक हम नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। सो दिस इज वन पॉसिबिलिटी, 754 664। सो लेट मी यूज इट, 754 664। बी को लेट्स से मैं 754 दे देता हूं, 754 और 664, 664, करेक्ट। सो इनका टोटल हो जाएगा 17, इनका टोटल 16 और 16। दिस इज वन पॉसिबिलिटी इस केस के लिए।
चलिए अगर मैं 656 यूज करता हूं तो उसका क्या पॉसिबिलिटी होगा? 656 जो होता है 17, तो z तो 17 ही है। वापस जाते हैं, जहां पर हमारे पास नंबर सारे लिखे हुए हैं, और अब मैं यूज करूंगा 656। ओके, नो इश्यूज। So 656, let me get rid of this. Just creating some space. चलिए, मैंने z को दिया हुआ है 656, ठीक है। b और d की बात करते हैं। 656 मतलब I have used this as of now, ये वाला 6 यूज कर लिया है। So 6 7 5 7 4 6, यहां पर क्या था 3 4 6, या आई हैव यूज्ड ओनली दिस 6 हाईएस्ट में, और मैंने यहां से 6 यूज किया है, यहां से 5 यूज किया है। अभी दोनों 7 बाकी हैं, एक दोनों किसी ना किसी को 7 तो देना ही पड़ेगा। तो एक कंट्री को एस का 7 देना पड़ेगा, दूसरे कंट्री को एस का 7 देना पड़ेगा। तो चलो 7 तो दे ही दिया, क्योंकि उन्होंने हाईएस्ट स्कोर किया ही किया है, ये मालूम है हमें। तो एक 7 दे दिया, ठीक है। नाउ एक 7 दे दिया मैंने, 5 अभी तक ये वाला 5 यूज किया है। सो कैन आई यूज दिस 7, डबल लाइन कर रहा हूं मैं, दिस 7, दिस 5 एंड दिस 4। कैन यू डू दैट? 7 प्लस 5 12, 12 प्लस 4 16, ये हो गया 16। ओके, 7 5 4। अब मेरे पास ये 7 बचा हुआ है, अब मेरे पास ये 7 बचा हुआ है, यहां पर मेरे पास एक 5 बचा हुआ है। सो 7 प्लस 5, क्योंकि यहां से हाईएस्ट में 5 ही यूज कर सकता हूं। यहां पर मुझे हाईएस्ट क्या यूज करना पड़ेगा? ये 6 यूज हो चुका है, ये 4 यूज हो चुका है, यहां पर मेरे पास एक 3 बचा हुआ है। ओके, सो व्हाट शुड वी डू नाउ? अगर मैं यहां पर 7 करता हूं, सो 7, एक 7 यूज कर लिया हमने, बाकी बचा है 9। अब मुझे कुछ भी करके 9 लाना है। 9 के लिए मुझे यहां से लाना है 9। सो मैं कैसे ला सकता हूं? आइदर आई कैन हैव 6 प्लस 3, बट ये 6 यूज हो चुका है, और आई कैन हैव 5 प्लस 3। तो ये 5 यूज, यहां पर 5 है, यहां पर 3 4 है नहीं मेरे पास। सो व्हाट डू आई डू? यहां पर मैं 16 का सम नहीं बना सकता हूं इन द सेकेंड केस, राइट? क्योंकि हमने 6 5 6 ऑलरेडी ये 6 यूज कर लिया है, ये 5 यूज कर लिया है, ये 6 यूज कर लिया है। सेकंड वाले में हमने क्या किया? 7 यूज किया, 5 यूज किया और 4 यूज किया, करेक्ट। हम और कुछ यहां पर कर नहीं सकते थे, हम 7 5 और 3 नहीं कर सकते थे, बिकॉज दैट वुड मीन दैट इज 15, करेक्ट। सो दैट इज वाई यहां पर हम 16 नहीं बना पा रहे हैं। सो आई विल हैव टू गो टू माय सॉल्यूशन एंड आई हैव टू रिजेक्ट 16, बिकॉज मेरे सेकेंड केस में 16 नहीं बन रहा है, वो दोनों टाई नहीं हो पा रहे हैं, है ना। सो 16 इज नॉट द आंसर। बिकॉज दोनों केस में सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर एक केस में हो रहा है तो नहीं चलेगा। सो नाउ आई विल ट्राई फॉर 15। 17 इज नॉट द आंसर, 16 is not the answer. I'll try for 15. So I have to have 15 here, I have to have 15 here, right? Okay, one more thing. मान लीजिए मुझे 15 सम बनाना है, ऑलरेडी यहां पर मैंने 6 7 4 दे दिया है, ठीक है। सो मुझे किसी ना किसी कंट्री को इसका हाईएस्ट देना पड़ेगा। मान लीजिए मैं बी को इसका हाईएस्ट देता हूं 7, और किसी ना किसी कंट्री को इसका हाईएस्ट देना पड़ेगा। सो अब मेरे पास इन दोनों का सम 8 होना चाहिए और इन दोनों का सम 9 होना चाहिए। ओके, इसी तरीके से देखते हैं। सिमिलरली यहां पर 6 5 6 है, मुझे यहां पर सम 15 बनाना है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसको इसका 7 दे देता हूं, इसको इसका 7 दे देता हूं, तो यहां पर सम होना चाहिए 8, इन दोनों का सम होना चाहिए 8। सो हमें बस ये देखना है क्या हम 8 का सम ला सकते हैं इन बोथ द केसेस। तो पहला केस है जहां पर हमने 6 7 4 यूज करा हुआ है। सो लेट्स क्विकली गो बैक टू आवर डेटा। Okay, just creating some space for me. This is 5 6 7. This is 5 5 7. This is 4 6. So पहला केस क्या था? 6 7 4। ये Z का स्कोर है 6 7 4, which is 17. Fine.
अब आती है बात BD पे, एक को इसका हाइस्ट दे दो 6, एक को इसका हाइस्ट दे दो 7 और 6, ठीक है। नाउ हमें चाहिए सम 8 ये दोनों का। चलो हम इन दोनों का सम 8 ला सकते हैं। मान लीजिए मैं ये 5 यूज कर लेता हूं और ये 3 यूज कर लेता हूं, 5 and 3, क्योंकि 7 मैंने हाईएस्ट यूज किया हुआ है। तो 7 5 3 ये हो गया अपना 15। फाइन। सिमिलरली इन दोनों का सम मुझे 9 लाना है, 9, ओके। और अभी तक मेरे पास यहां पर 7 है, यहां पर 7 है, यहां पर 6 है, मैं ये यूज किया हुआ है, ये 6 यूज किया। यहां पर मुझे 9 लाना है, 9 मतलब 5 and 4। तो देखो ये भी 5 बचा हुआ है और ये भी 4 बचा हुआ है। सो आई कैन सिंपली फाइंड 5 4 and 6। ये भी कितना हो जाएगा, 5 4 and 6 15। So yes, 15 is possible in this case. 15 is possible in this case. दूसरा केस क्या था, 6 5 6। So let me try to do that. 15 is possible. ये हमने देख लिया है। ओके, वापस करते हैं फटाफट से। ZBD यहां पर 6 5 6, इसका मतलब इसके पास एक 7, इसके पास एक 7, बचा है 8। यहां पर सम 8 होना चाहिए, यहां पर सम 8 होना चाहिए। चले पहले इसको कर देते हैं 8। क्या मेरे पास इन दोनों कॉलम में 8 बनाने जैसा कुछ काम है? हाँ है। अभी तक हमने सिर्फ 6 5 6 यूज किया है। सो लेट मी मार्क जो हमने यूज किया है, ये 3 4 6 जो हमने यूज किया है उसको मैं राउंड कर देता हूं। यहां से 6, यहां से 5 और यहां से 6। जो राउंड किया है बस वही यूज किया हुआ है। एक 7 यूज हो गया है, दूसरा भी 7 यूज हो चुका है। ओके, अब जो राउंड नहीं किया वो सब अवेलेबल है यूज करने के लिए। जहां पर राउंड नहीं किया है वो सब अवेलेबल है यूज करने के लिए। यहां पर सम 8 होना चाहिए। डू वी हैव 8 इन द लास्ट टू कॉलम? हाँ है। देखो मैं यहां पर राउंड कर रहा हूं, 5 और ये 3, तो ये 8 हो गया। ओके, अब मुझे यहां पर 1 and 3 S and C कॉलम में से 8 बनाना है। तो बन सकता है ये एक 5 यू रहा और ये एक 3 ये रहा। सो ये 5 और 3, सो ये भी 15, ये भी 15। इसका मतलब दोनों ही केस में 15 का सम पॉसिबल है। सो दैट्स इट गाइस, वी हैव गॉट आवर आंसर दैट दोनों का सम 16, जो टाई है वो 16 है। क्वेश्चन 3, यही सेम चीज हमने वहां पर की है। सो यहां पर आपको 15 15 15 15 ट्राई करना है ना। सो ये हमने 5 और 3 यूज किया था, यहां पर हमने 5 and 4 यूज किया था, राइट। यहां पर हमने 5 and 3 यूज किया है, यहां पर भी हमने 5 and 3 यूज किया है। So 15 is the answer guys. Difficult question, difficult. Correct. इसको आप अपने आप से जब करने बैठोगे तो एटलीस्ट आपको 2 से 2.5 मिनट लगेगा, बिकॉज आपको हर एक केस चेक करना पड़ेगा, है ना। ओके, विद दैट लेट्स मूव टू आवर फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन 4, इफ B scores 16 and D scores 15, अभी भी वो लोग हैप्पी ही हैं। देखिए हैप्पी में कौन कौन है, Z 17 के साथ, B अब आ गया 16 के साथ और D अब आ गया 15 के साथ। Then what is the maximum number of countries with a score of 13? ये क्वेश्चन पूछा है। maximum number of countries with a score of 13. Okay, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, डिफिकल्ट है, इंटरेस्टिंग है। कैसे करोगे आप? हमें कितने कंट्रीज के एक्चुअल स्कोर मालूम है? हमें ये मालूम है Z 17, B 16, D 15, ये हैप्पी वाले थे। हम ये भी जानते हैं कि A and C इनका सम 7 है, A and C इनका सम 7 है, हम ये भी जानते हैं। ओके, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कितना सम स्कोर ऑफ सम होगा ये देखना पड़ेगा। सो सम का एक बार टोटल निकाल लेते हैं। चलिए, सो लेट्स गो बैक टू अपना जो मेन सोल्यूशन वाला टेबल है जो हमने ड्रॉ किया है, वहां पर चलते हैं। ओके, अभी फिलहाल राउंड वगैरह भूल जाइए, जस्ट ट्राई टू फाइंड द सम। हर एक चीज का सम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो चलिए हर एक कॉलम का सम कर दीजिए आप। तो ये कितना हो जाएगा, 9 and 12 21, 21 and 10 31, 31 37, 37 and 7 44। ओके, यहां पर सम कर दीजिए, ये 4 and 10 19, 19 and 29, 29 and 6 30, 29 and 6 35, 29 and 7 था, सॉरी 29 and 7 36। यहां पर आते हैं
ये हो जाएगा 7, 7 एंड 13, 13 एंड ये 10, 23, 23 एंड 6, 29। इनका सम कर दीजिए। सो 44 एंड 36 हो जाएगा 80, 80 एंड 29, 109। 109 हमारे पास टोटल सम है। टोटल सम अपने पास 109 है। ओके और अभी 5 कंट्री के स्कोर बचे हुए हैं, राइट? 5 कंट्री के स्कोर बचे हुए हैं, 17, 16, 15, 7, 7, टोटल है 109, है ना? इनका सम कितना होगा? व्हाट इज द सम ऑफ दीज? सो हियर वी हैव 15, 16, 17, 16 is 48, 48 and 7 55, 55 and 7 62। 109 में से 62 माइनस कर देते हैं, कितना बचेगा? यहां से 38 और वहां से 9, 47। करेक्ट? 47 अभी तक सम बचा हुआ है। सो रिमेनिंग इज 47। प्लीज इसको अच्छे से समझना। ओके, रिमेनिंग सम 47 है। रिमेनिंग कंट्रीज कितने हैं? ये सिर्फ 5 कंट्री है, 10 कंट्रीज है टोटल, तो 5 कंट्रीज बचे हुए हैं। ओके, 5 कंट्रीज बचे हुए हैं। चलो लेट मी थिंक अबाउट द हाईएस्ट ऑप्शन जो है 3। इसका मतलब अगर 3 कंट्री का स्कोर 39 हुआ तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, इफ 3 कंट्रीज हैव 13 का स्कोर, मतलब टोटल 39, तो उनका टोटल 39 हो जाएगा 13 इंटू 3। इसका मतलब है बाकी 2 कंट्रीज के लिए क्या बचेगा मालूम है? रिमेनिंग 2 कंट्रीज के लिए बचेगा 47 माइनस 39, जो कितना है 8। जबकि लोएस्ट स्कोर 7 है, ये हमें मालूम है। अगर लोएस्ट स्कोर 7 है तो 2 कंट्री का स्कोर 8 नहीं हो सकता, है ना? 2 कंट्री का स्कोर 8 नहीं हो सकता, मतलब दिस इज नॉट पॉसिबल। ये चीज पॉसिबल नहीं है। चलो, व्हाट इफ 2 कंट्रीज हैव 13 का स्कोर, मतलब उनका टोटल कितना हो जाएगा? 26। उनका टोटल हो जाएगा 26, है ना? 13 इंटू 2। इसके लिए रिमेनिंग का कितना बचेगा? 47 माइनस 26, दैट इज 21। कितने? रिमेनिंग 3 कंट्रीज के लिए। रिमेनिंग 3 कंट्रीज का सम 21। लोएस्ट स्कोर 7 है। इसका मतलब क्या है कि अगर उनका स्कोर 777 है तो ही ये चीज पॉसिबल है, अदरवाइज ये चीज पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स 2 कंट्री का सम 13, बाकी 3 कंट्री सम, तो स्कोर कुछ ऐसे दिखेंगे आपको 17, 16, 15, उसके बाद 13, 13, फिर 7, 7, 7, 7, 7। टोटल 5 कंट्री हो गए जिनका स्कोर 7, 7, 7, 7, 7 ऐसा है। करेक्ट? ये हो गए 10 स्कोर्स आपके, राइट? जिनका सम भी 109 होता है। सो क्या ये चीज पॉसिबल है कि नहीं, ये हमें देखना है। इज दिस पॉसिबल और नॉट, दैट वी हैव टू सी। सो उन्होंने बोला है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ स्कोर 13, उसमें 2 दिख रहा है, बट वी हैव टू गो टू द डेटा एंड सी कि क्या हम कोई कंडीशन वायलेट तो नहीं कर रहे हैं। So let's go back to the data. Okay. यहां पर उन्होंने बोला है कि A and C jointly have the lowest score. इसका मतलब उन दोनों का ही lowest score है, बाकियों का lowest score नहीं है। A and C have jointly scored the lowest. That means बाकी तीनों का 7 से स्कोर ज्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि 2 भी पॉसिबल नहीं है। सो ये चीज भी गई। ओके, अब आते हैं लास्ट। सो 3 इज कैंसल, 2 इज कैंसल, अब आते हैं 1 पे। इफ 1 कंट्री हैज 13, सो 47 में से आप 13 निकाल दीजिए, कितना बचेगा? सो 47 में 30 गया, 34 बच गया। दैट मीन्स रिमेनिंग
4 कंट्रीज का सम इज 34। सम 34 है, इसका मतलब हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि अगर सारे के सारे कंट्री 7 से ऊपर हैं, चारों के चार कंट्री 7 से ऊपर हैं, तो यस उनका स्कोर 34 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 8, 8, 8 एंड लेट्स से 10, 8, 8, 8 एंड 10। सो यस दैट इज पॉसिबल। सो हाँ, हम ये बना सकते हैं, लेट्स से एक 17 का कंट्री, एक 16 का, एक 15 का, ये तो दिया हुआ था, एक कंट्री 13 का, बाकी 3 कंट्री का सम, बाकी 4 कंट्रीज का सम 34, और फिर लास्ट लोएस्ट वाले ए एंड सी। सो यस दिस इज पॉसिबल, वन कंट्री कैन हैव 13 का स्कोर, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, राइट, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। आपने देखा ही होगा कि एक्सप्लेन करने में कितना टाइम जा रहा है, सो खुद सॉल्व करोगे तो इससे हालांकि थोड़ा आधा कम टाइम जाएगा, बट यस यू नीड टू हैव कंप्लीट फोकस, यू नीड टू रिमेंबर एवरीथिंग, यू नीड टू हैव एन amazingly structured rough work, and that is where the magic of smart work comes, right? So this was a very difficult set from CAT 2017. Let's move towards the next set.